हाँ जी, पंजाब जीके ਦੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, which system was started by Guru Ramdas ji for spread of Sikh religion and collection of offering by the disciples? ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਹੁਲ, ਮੰਜੀ, ਮਸੰਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ which was fought in 1831 between the forces of, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਜਮਰੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀਗੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਲਾਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ। which of the following statement is not correct? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ not correct, that is important. The original name of the village where Guru Tegh Bahadur ji purchased land was Makhowal, not Madhowal, Makhowal। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट ये हो गई। और दूसरी स्टेटमेंट हो गुरु तेग बहादुर जी वाज एल्डेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद जी, दूसरी स्टेटमेंट हो गई। तीसरी स्टेटमेंट भाई गुरदित्ता जी वाज नॉट रिलेटेड टू गुरु तेग बहादुर जी, ये तीसरी स्टेटमेंट हो गई। चौथी गुरु हर राय जी वाज सन ऑफ बाबा गुरदित्ता जी, ये चौथी स्टेटमेंट हो गई। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਸ ਸਨ ਆਫ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਨੀ ਰਾਏ, ਅਨਿਲ ਰਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ eldest son, he was not the eldest son, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ was the eldest son of ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सो अपन पूछा कि नॉट करेक्ट, तो ये वाला हो गया। भाई बाबा गुरदित्ता जी was not related to गुरु तेग बहादुर जी, he was related to क्योंकि वो भरा सी आपस दे विच। सो ये स्टेटमेंट जिहड़ा सीगा कि कोई नॉट हैगा, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
फर्स्ट एंड सैकेंड ऑप्शन साडा आंसर होएगा। दैट मीन्स कि दूजियां ते तीजियां स्टेटमेंटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Kalmoth was captured by Sikhs after defeating Raja Bhim Chand in the Battle of Basoli। ਇਹ ਬਸੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਲਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ was captured by Sikhs, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਸੌਲੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਲਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਬੈਟਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਸੌਲੀ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ ਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਜ਼। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੋਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਿਸਾਈਡ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫॉर ਹਿਸ ਕਿੱਸਾ ਆਫ ਹੀਰ। ਇਹ ਦਮੋਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਹੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। overall debt of Punjab as per budget 2022-23 is going to be 48.48% of GDP of the state। ठीक है जी। Second is Punjab spend 90% of revenue on committed expenditure। ठीक है, expenditure ਇੱਥੇ expenditure ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। committed expenditure includes salary, pension and interest। ठीक है जी। ਕੋਈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਭਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। once again ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਪਰ ਬਜਟ 2022-23 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ that will be 48.48% of the GDP of the state। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਂਡ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ 75% 80% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। Under whose Gurudom the Sikhs initiated to become a political and the military force। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਿਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। hot blowing winds before monsoons arriving in Punjab ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। they are known as ਲੂ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ, ਬਨਾਸਰ ਗਾਰਡਨ, ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੈ। ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ
ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Which of the following statement is true? 6 districts of Punjab have common border with Pakistan running for 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ, 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂ ਆਂਸਰ। Punjab government has started a drive to motivate the farmer to shift to direct seeding of rice. Direct seeding of rice ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੌਧ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀਰੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ what gain is expected from this method? ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? It will help slash cultivation cost in terms of labor. ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। It will result in saving of the water. ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। It will help in saving crop from bird and rat. ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। So that means ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? C ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ both 1 and 2 are true. ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। Of the 5 ਤਖਤ of Sikhism, how many are directly associated with Guru Arjan Dev Ji? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 5 ਤਖਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਖਤ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਿਲ। ਪੰਜਾਬ has been leader in making procurement of wheat from the center, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ wheat ਦੀ procurement ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਰ 2020-21 ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 127 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 129 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਖ ਟਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ is not the largest producer of wheat. ਪੰਜਾਬ is not the largest producer of wheat. ਲਾਰਜਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। Which state published the budget in Punjabi for the first time? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੈਪਸੂ in 1948. ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ was contemporary of which Sikh Guru? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਗੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। To improve infrastructure and extension of better services to citizen, Government of India launched Smart Cities Mission. Smart Cities Mission ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ
ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ was not in the original list, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, was not in the original list of selected cities and was adopted later on। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। Swami Ramdas, who belonged to Dash, met Guru Hargobind Ji when they met in Kashmir, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਖੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ। ਦ ਫੋਰਮੋਸਟ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਨਸਲੌਟ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਸੇਂਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ these were the few questions ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, तो आज मैं आशीष फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं और यहाँ पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है उनको हम यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास देखेंगे स्मार्टफोन कंबाइन डैश रेडियो टेक्नोलॉजी विद स्पेशल डिजाइन प्रोसेसर as smartphone have evolved, app developer have found new indigenous way to use the hardware and wireless connectivity to make information instantly available to the user। तो एनालॉग आपके पास GSM, सेलुलर या फिर डिजिटल, कौन सा आज की डेट में टेक्नोलॉजी आप लोग जो हैं यूज करते हैं? तो अगर मैं बात करता हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बट सम टाइम एग्जामिनर जो है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो आंसर आपके पास रहेगा वो आपके पास रहेगा सेलुलर टेक्नोलॉजी। पहले आप लोग एनालॉग किया, फिर GSM किया, आज की डेट में हम लोग सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इसका फायदा क्या है कि आपके पास हर जगह एक तो वाइड रेंज में फैला हुआ है, कनेक्टिविटी आसान हो गया है और बहुत से ऐसे फायदे हैं जैसे कि लोकल इंडिजीनियस की अगर बात करता हूं आपके पास यहाँ पे, इसका मेरा बहुत ज्यादा हमें फायदा मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्ड डेटा टेम्परेली एंड पास इट ऑन द डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल्ड यूनिट? आपके पास एड्रेस, रजिस्टर, नंबर एंड मेमोरी। देखो जब भी आपके पास यहाँ पे बात कुछ इस तरीके की आती है टेम्परेरी स्टोर करने की, तो एड्रेस में आपके पास नहीं होगा, नंबर्स में नहीं होगा, मेमोरी में नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास वर्ड आएगा रजिस्टर। एक्चुअल में CPU रजिस्टर करके भी आप लोग इसे जानते हैं, तो जहाँ पे ये सारा का सारा काम टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करने का किया जाता है। तो होपफुली दिस इज आल्सो क्लियर टू यू। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द
फॉलोइंग MS Excel फॉर्मूला। अब MS Excel में एक फॉर्मूला लिखा है, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इज इक्वल टू राउंड। मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ राउंड का मीनिंग क्या होता है। इज इक्वल टू राउंड, देखो राउंड, आपको एक बात तो पता है कि जब भी MS Excel हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MS Excel में सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कैलकुलेशन का काम बहुत होता है। जितना भी कैलकुलेशन का काम है वो सारा का सारा कहाँ करते हैं, MS Excel में। तो एक्सेल में जब भी आप लोगों को कोई किसी वैल्यू के रिजल्ट चाहिए, और ये इतने एक्यूरेटली करता है कि डेसिमल के बाद जितने मर्जी पॉइंट आ जाए वो सारे लेके आ जाएगा। मान लो कि मैंने कोई कैलकुलेशन किया जिसका रिजल्ट आ गया 98.865432 इस तरीके से आ गया। अब मेरे को इतना बड़ा तो चाहिए नहीं, मेरे को डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए थे, 98.96 मेरे को इतना चाहिए, इतना सफिशिएंट है। तो आपसे ये पूछा गया कि राउंड का मतलब क्या है। तो राउंड में आप लोग यहाँ पे देखते हैं ये रिजल्ट था आपके पास 3.4565। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 लिखा है ये बता रहा है कि 3 डिजिट तक ही चाहिए, मतलब मेरे को रिजल्ट यहाँ तक ही चाहिए, ये नहीं चाहिए था। तो अब इससे आप जब भी आप लगाते हैं तो 1 डेसिमल वो आगे उठा लेता है, आपको इसका आइडिया होगा। तो 3.457 इसका जो है एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक वैल्यू आपको चाहिए वो यहाँ पे डिसाइड होता है। अगर यहाँ मैं आखिर में 3 की बजाय 2 कर दूं तो 2 आ जाएगा, अगर मैं 1 कर दूं तो 1 डेसिमल डिजिट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। तो होपफुली ये राउंड का मीनिंग क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल वैल्यू हमें चाहिए वो इससे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले है OMR, OCR, MICR या BDU। तो देखिए OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, OCR क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब BDU क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये सारे के सारे तो इनपुट हैं। BDU तो क्या एक आउटपुट डिवाइस है। सो आंसर इज BDU। होपफुली ये भी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग एट मल्टीपल प्लेस इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मेटिंग को आपने मल्टीपल पेजेस पे क्या करना है, अप्लाई करना है। स्ट्राइक थ्रू, फॉर्मेट पेंटर, शेड या फिर चेंज केस। अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या है कि जो भी वर्ड आपने लिखा है, जैसे विच लिखा है आप लोगों ने, तो इसके थ्रू यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर में आपके पास ये सारा के सारा चीजें आते हैं। शेड मतलब इसका परछाई, शेडो या चेंज केस, मतलब इसमें अपर केस एंड लोअर केस की बात आती है। तो होपफुली बात आपको अब यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि फॉर्मेट पेंटर जो है इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर में सारा का सारा ये चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड टू इंसर्ट मेन्यू इन MS PowerPoint 2016 कैन बी यूज्ड टू क्विकली एड अ पिक्चर ऑफ एनी विंडो दैट इज ओपन ऑन योर डेस्कटॉप ऑन योर प्रेजेंटेशन, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन पिक्चर या फिर फोटो एल्बम। थोड़ा सा सोच के देखेंगे, पिक्चर तो आपके सिस्टम के ऊपर पड़ी ही होती हैं, आपके पास स्क्रीनशॉट है, ऑनलाइन पिक्चर है या फिर फोटो एल्बम है। अब ऑनलाइन की अगर मैं बात करता हूं तो समझ में आ रहा है कि जब इंटरनेट होगा तभी होगा। फोटो एल्बम अगर आपने बना के रखा है, बात किसकी आई थी, स्क्रीनशॉट की। बात किसकी आई है, स्क्रीनशॉट की। तो उसी का तो आप लोग क्विकली ऐड कर सकते हैं ना। तो ये थोड़ा सोच के भी अगर आप लोग करते हैं तो ये अटेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज MS DOS। MS DOS जो है वो कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो मल्टीटास्किंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस या फिर मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। पहली बात, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस है। अब यहाँ पे या तो GUI होगा या तो CUI होगा। GUI का जो मतलब होता है वो होता है जिसमें माउस यूज किया जाता है, और MS DOS विदाउट माउस चलता है। अगर मैं बात करता हूं कमांड बेस है। अगर कमांड बेस है तो आपके पास यहाँ पे आपको मालूम है इसका होगा कमांड लाइन इंटरफेस, C ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, C ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनेगा। होपफुली ये भी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज I love you, ब्लास्टर, सासर या फिर क्रीपर। I love you भी एक वायरस था, मैं आपको बता दूं।
कई बार बच्चों को लगता है कि ऐसा वायरस था, बिल्कुल एक वायरस था, बहुत ट्रेंडिंग वायरस था। एक फाइल आपको भेजी जा रही थी जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू। बहुत से बच्चे ने, बहुत से लोगों ने क्या किया, आई लव यू आया, अच्छा खोल के दिखा, जैसे आपने खोला वैसे आप ट्रैप में फंस गए। ठीक है, तो ये भी था, पर ये पहला नहीं था, पहला था क्रीपर। आपको याद रखना है, पहला जो था दैट इज क्रीपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, ये क्वेश्चन है, इन द ईमेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। आप एक वर्ड को देखते ही आप पूरे मैसेज समझ आते हैं कि क्या है। तो उसमें है सब्जेक्ट, सीसी, टू या फिर कंटेंट। तो कंटेंट में तो पूरा का पूरा कंटेंट लिखा रहेगा कि क्या है। टू में किसको भेजा जा रहा है, सी का मतलब कार्बन कॉपी। तो एक ही चीज समझ में आ रही है कि सब्जेक्ट में आप लोग चीजों को क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है ना, क्या कर देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, जिसके थ्रू हमें ये सब पता चल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर फुल आपके पास सिंप्लेक्स। तो कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेथड हैं आपके पास कम्युनिकेशन चैनल के। तो सिंप्लेक्स क्या मतलब होता है, अपने आप में एक बंदा अगर इनपुट दे रहा है तो वो इनपुट ही दे सकता है और आउटपुट वहां से नहीं आ सकती। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिंप्लेक्स में सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव तो करता है चीज़ों को, पर पहले सेंडर सेंड कर सकता है, बाद में रिसीवर रिसीव भी कर सकता है, इस तरीके से। और आपके पास फुल डुप्लेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे होगा, आपके पास एक तरफ दोनों ही टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों तरफ डेटा जो है यहाँ पे सेंड किया जा सकता है। तो अब कीबोर्ड जो होता है वो एक ही तरफ से काम करता है ना। तो आंसर क्या बनेगा, सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पे बनेगा कि डेटा सेंडर सेंड कर पाता है, रिसीवर क्या कर पाता है, रिसीव कर पाता है, बस यही काम होता है। तो इसे सिंप्लेक्स मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको सभी को क्लियर होगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते लिए आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो इस बार फिर से मैं आशीष आपके सामने यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और रीजनिंग के इस मॉक टेस्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। सबसे पहले और फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या है, ये सिटिंग पजल का यहाँ पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, देयर आर 4 पीपल सिटिंग इन अ रो, वन इन ईच फ्रॉम इंडियन, जापान, यूएसए एंड जर्मनी। आपके पास 4 बंदे हैं और इन्होंने 4 कैप पहनी हुई है, वेयरिंग अ कैप ऑफ अ डिफरेंट कलर, ग्रीन, येलो, या आपके पास ग्रीन है, येलो है, रेड है एंड व्हाइट, बट नॉट नेसेसरली इनटू द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे 2 चीजें तो समझ में आ गई हैं कि आपके पास कंट्रीज हैं और उन्होंने कैप पहनी हुई है, पहली चीज तो ये समझ में आई है। आगे क्या है, वन हु वेयरिंग कुर्ता, मतलब एक कंपोनेंट और ऐड किया गया है, कुर्ता। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करता हूँ, कुर्ता की बात की गई है, वन हु वेयरिंग कुर्ता एंड टी शर्ट, वन वेयरिंग टी शर्ट, एक मतलब एक कंपोनेंट और आ गया, मतलब इनके कपड़े भी आ गए, ये समझ में आ गया। देन आगे क्या है, द इंडियन वेयरिंग ग्रीन कैप, द इंडियन जो है वो ग्रीन कैप पहनेगा, ग्रीन कैप आपके पास पहनता है, एंड अ जैकेट, और ये क्या पहनता था, इंडियन वेयरिंग ग्रीन कैप एंड जैकेट। तो ये समझ में आ गया कि इसमें ये है, इंडियन का तो हमें पता चल गया है। आगे आपके पास है, द अमेरिकन इज नॉट सिटेड ईदर एट द एंड, मतलब 4 बंदे थे तो 4 पोजीशन सबसे पहले आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया है। और उसने कहा अमेरिकन ना तो इस कोने पे है ना तो इस कोने पे है, या तो अमेरिकन यहाँ पे होगा, ठीक है ना, या तो अमेरिकन यहाँ पे होगा या तो अमेरिकन यहाँ पे होगा, दोनों में से किसी एक जगह पे अमेरिकन होगा, पर वी आर नॉट श्योर कि इनमें से किसी जगह पे वो रहेगा। देन उसके बाद आगे आपके पास क्या है, द पर्सन विद कुर्ता, अब द पर्सन विद कुर्ता एंड टी शर्ट, ये देखो ये कुर्ता था और ये टी शर्ट है, आर सिटिंग ऑन द नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हैं। कुर्ता पहले भी आ सकता है, टी शर्ट पहले भी आ सकती है, टी शर्ट पहले भी आ सकती है, कुर्ता भी पहले आ सकता है। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब ये होता है, द पर्सन विद कुर्ता वेयर रेड कैप, कुर्ता ने रेड कैप पहनी है, एंड सिट नेक्स्ट टू दी जापान, और जापान के आगे बैठा है, जापान के आगे बैठा है, ये इसका मतलब हुआ है। द जापानीज वर वेयरिंग शर्ट, और जापानीज ने क्या पहना है, शर्ट पहना है। देन आगे आपके पास क्या है, एंड इज सिटेड एट द ईदर एंड,
एंड इज नॉट सीटेड, मतलब ये यहाँ पे नहीं आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। इतना हमें ये भी पता चल गया है कि जापान भी कोने पे नहीं बैठा है, वो तो सेंटर में ही बैठा है। देन आगे क्या है, द मैन विद व्हाइट कैप वेयरिंग टी शर्ट, ठीक है, द मैन विद व्हाइट कैप वेयरिंग टी शर्ट, टी शर्ट के पास है व्हाइट कैप, ठीक है, एट सिटेड एट द वन ऑफ द एंड, या तो ये इस कोने पे बैठा है या तो ये इस कोने पे बैठा है, आपके पास किसी कोने में यहाँ पे बैठा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो एक चीज समझ में आई है कि इंडियन जो था वो ग्रीन कैप था, तो मैं कहना इसे कि मैं यहाँ पे इंडियन लेके देख लूं, अगर इंडियन यहाँ लेता हूं तो आपके पास इसकी कैप क्या आ जाएगी, ग्रीन, और इसकी आपके पास जैकेट आ जाएगा। अगर ये यहां पे आ जाएगा तो आपके पास क्या था, टी शर्ट, और आपके पास यहाँ पे द मैन विद व्हाइट कैप, जिसके पास व्हाइट कैप है वेयरिंग टी शर्ट, इज सीटेड एट वन ऑफ द एंड, इस वन ऑफ द एंड का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं व्हाइट ले लेता हूं कैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, टी शर्ट, ठीक है। अब जापानीज तो यहाँ पे और अमेरिकन तो आने नहीं है, ये तो हमें कंफर्म है, तो मैं क्या करता हूं, इनको मिटा लेता हूं, मैं क्या करता हूं, इनको मिटा लेता हूं। अगर जापानीज और अमेरिकन नहीं आएंगे तो यहाँ पे जर्मन तो आ जाएगा, लो जी जर्मन आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आपके पास बचे कौन कौन से हैं, जापानीज बचा हुआ है और एक बचा हुआ है आपके पास अमेरिकन। अगर जापानीज की मैं बात करता हूं तो जापानीज जो है शर्ट पहनता है, जापानीज जो है वो शर्ट पहनता है, और किससे आगे था आपके पास, किससे पहले था, कुर्ता से पहले, तो यहाँ पे कुर्ता आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शर्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, शर्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जापानीज और यहाँ पे यूएसए, ठीक है। अब एक चीज और देख लो कि कुर्ता पे रेड था, अच्छा रेड यहाँ पे आ गया, अब कलर एक ही बचा है, कलर बचा है येलो, तो येलो यहाँ पे ले लिया, लो जी। तो सबसे पहले हमने इसका डायग्राम जो है वो कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट अब देखते हैं, हु वेयरिंग द टी शर्ट, टी शर्ट किसने पहनी है, तो टी शर्ट जो है जर्मन वाले बंदे ने पहनी है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, हु इज वेयरिंग कुर्ता, तो कुर्ता किसने पहना हुआ है वो देख लेते हैं, कुर्ता पहना है यूएसए वाले बंदे ने, कुर्ता पहना यूएसए वाले बंदे ने, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, इसका आंसर सी बन जाएगा। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द कलर ऑफ द कैप रेड, हु बट इज द कलर ऑफ द कैप बोर्न इन द जापानीज, जापानीज का जो आपके पास कैप का कलर है वो क्या आएगा, वो भी देख लेते हैं जापानीज का। तो जापानीज है कहाँ पे, येलो, जापानीज कहाँ पे है, येलो, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आंसर कर देंगे, जापानीज का जो आएगा वो क्या आएगा, येलो आएगा, ठीक है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु प्रीसीडेड द मैन वेयरिंग टी शर्ट, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले, तो टी शर्ट से पहले कौन था, टी शर्ट से पहले कौन था, अब टी शर्ट से पहले आपके पास यूएसए कुर्ता एंड रेड, टी शर्ट से पहले क्या है, कुर्ता यूएसए एंड रेड, ठीक है। यूएसए था तो यहाँ पे अमेरिका आ जाएगा, यूएसए तो था नहीं तो अमेरिका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, हु प्रीसीडेड द मैन बेयरिंग द जैकेट, ठीक है। प्रीसीड्स का मतलब फिर से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पहले होगा, प्रीसीड्स का मतलब फिर से यहाँ पे क्या होगा, पहले होगा। तो अगर मैं बात करता हूं, हाँ, तो जैकेट से पहले कौन है, जैकेट से पहले आपके पास कौन है, तो जैकेट से पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है, तो आप देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनेगा फिर। तो जैकेट से पहले आपके पास यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे फिर जो आपके पास आना है वो आना है नन, यहाँ पे जो आंसर आना है वो आना है नन, यहाँ पे जो आंसर आना है जर्मन नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नन, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा नन, क्योंकि कोई बंदा तो है नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नन इसका आंसर बनेगा।
तो इंडियन, जापानीज, अमेरिकन ये कभी आंसर नहीं बन सकता। अगर मैं बात करता हूं तो इसका आंसर आएगा नन आएगा, ठीक है, तो कोई भी नहीं है। चलिए, होपफुली इतनी बात पहले आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, हमने यहाँ पे सही कर दी है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न, में से कौन सा फिगर है जो पैटर्न को कंप्लीट करता है। तो आपके पास अगर मैं बात करता हूं तो इस वैल्यू को अगर उठा के यहाँ रख देंगे तो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन द रो ऑफ गर्ल कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो थी जिसमें कमला जो थी आपके पास 10th फ्रॉम द लेफ्ट and Bimla is 12th from the right. Bimla is 12th from the right. ठीक है। When they exchange their places, Kamala is 16th from the left. जब ये एक्सचेंज करते हैं तो कमला यहाँ पे ही आ जाती है और लेफ्ट साइड से कितने आ जाते हैं 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। व्हाट इज द न्यू पोजीशन फ्रॉम बिमला फ्रॉम द राइट एंड, बिमला की राइट एंड से पोजीशन जो है वो कितनी आएगी। अब यहाँ पे when they exchange their places, कमला is 16 from the, हाँ तो ठीक है बेटा, अगर 10 से आप लोग यहाँ पे आए हैं, अगर यहाँ से 10 से तुम लोग 16 पे गए हो तो कितने आपने वैल्यू पार किए हैं, 6 वैल्यू पार की हैं। तो 12 से अगर यहाँ पे आओगे तभी भी यहाँ पे कितने वैल्यू 6 करने पड़ेंगे, 6 वैल्यू। तो ऑलरेडी 12 पे हो, 6 वैल्यू और आ जाओगे तो 18 पोजीशन पे आप लोग जो है आ जाओगे। तो आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कोडिंग डिकोडिंग से लिए गए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास इन सर्टेन कोड नोड, आपके पास TAOS मीन क्या है, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। आगे है TAKEJO मीन्स गुड एंड ब्यूटीफुल। आगे है KEOSNA मीन्स ही इज गुड। और निकालना किसका, शी का कोड निकालना है, SHE, शी का कोड निकालना है। तो अब व्हाट इज द कोड ऑफ शी, ही इज गुड, ठीक है। शी की अगर मैं बात करता हूं तो शी आपके पास यहाँ पे पहली लाइन में है। तो आपके पास सबसे पहले शी यहाँ देखते हैं, कोई और तो है नहीं, इज है, इज यहाँ पे देख लिया, इज यहाँ पे देख लिया। तो फर्स्ट और जैसे इसमें क्या कॉमन आया, OS कॉमन आ गया। ब्यूटीफुल यहाँ पे है, ब्यूटीफुल यहाँ पे है, तो ब्यूटीफुल में क्या कॉमन आ गया आपके पास, TA। तो शी का क्या बचा है, नोडी नोड। तो नोडी नोड आपके पास नहीं है तो नन ऑफ दीज आप लोग दे देंगे, आंसर क्या दे देंगे, नन ऑफ दीज यहाँ पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द सीक्वेंस एंड आर इंटरचेंज एंड आल्सो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट आर इंटरचेंज एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस लिख लेते हैं फिर चेंज करते हैं। यहाँ पे है 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8, है ना। पहले को दूसरे के साथ मतलब इस तरीके से इंटरचेंज यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से इंटरचेंज आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 4 7, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 8 और 3 आपके पास आ जाएगा। एंड सो ऑन विच डिजिट वुड बी द 7th काउंटिंग टू योर लेफ्ट। जब भी योर लेफ्ट का मतलब आ जाता है तो राइट साइड से है, तो राइट साइड से है तो 7 फ्रॉम द राइट आपके पास पूछ रखा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास 8 यहाँ पे आंसर बन जाएगा, जो कि रहेगा डी ऑप्शन, जो कि रहेगा डी ऑप्शन आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर कितने और ट्रायंगल कितने हैं। अगर स्क्वायर की बात करता हूं तो स्क्वायर सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पास 5 के बाद अगर हम देखते हैं तो एक ये अंदर भी बना हुआ है 6 और एक ये बाहर बना हुआ है 7, मतलब एक ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया कि यही बनेगा आपके पास। अब आगे चेक करते हैं स्क्वायर, आपके पास ट्रायंगल, तो ट्रायंगल देखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 फिर 5 फिर आपके पास 6 फिर बड़ा 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। फिर ये 14 फिर ये 15, ठीक है।
फिर आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये 16, ये 17, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे 17 तक तो अभी काउंट कर लिए हैं। 17 के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास ये एक फिर से 18, एक 19 और एक ये 20 और ये एक 21, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, तो ये भी आपके पास आंसर सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो 7, 8, 18, 57 डैश 11565, आपके पास यहां से अगर यहां जाते हैं तो मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस 1, यहां से यहां जाते हैं 8 इंटू में 2 16 प्लस 2 18 इंटू 18 इंटू में 3 54 प्लस 3 तो इंटू ऑफ 4 प्लस ऑफ 4 अगर आप कर देंगे तो 232 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। 232 यहाँ पे आंसर आपके पास बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलाश वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, एक पॉइंट पे खड़ा था, 3 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, एंड टर्न टुवर्ड साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्ड टुवर्ड वेस्ट एंड ट्रेवल 6, लीजिए 6 चाहिए यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम 6 एंड हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये पूछा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर 4 आ गया, बेस आपके पास यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे बेस किससे कितना आ गया 3 आ गया, तो आपके पास 4 और 3 का जो है आपका h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर p की वैल्यू की बात करता हूँ वो है 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, तो सीधा आप लिख सकते हैं 5 किलोमीटर, सीधा लिख सकते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हरियाणा किसके अंदर है, इंडिया के अंदर, और पूरा का पूरा इंडिया क्या है, वर्ल्ड के अंदर है, तो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फिर से आपके पास है क्वेश्चन जो है रैंकिंग का है, गोगी इज 5th द लेफ्ट एंड एंड पॉल इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, एक लेफ्ट से है गोगी, कितना है 5th फ्रॉम द एंड पॉल जो है आपके पास यहाँ पे है 12th, ठीक है, ये लेफ्ट एंड से है, ये राइट एंड से है। देन आगे क्या है, इफ पाल शिफ्ट बाय 3 प्लेसेस टुवर्ड गोगी, ठीक है, 3 प्लेस गोगी की तरफ, 1 2 3, ही बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, और ये 10th बन गया है लेफ्ट हैंड से, पाल है ये, ठीक है। देन आगे हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन अ रो, इस पूरी रो में बच्चे कितने हैं। तो देखो बेटा एक बंदे की पोजीशन तभी निकाली जा सकती है, ये फॉर्मूला ये लगता है, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। अब एक बंदा लेफ्ट है तो इसको राइट से भी निकाल लो, तो ये राइट साइड से, लेफ्ट साइड से अगर 10 है तो राइट साइड से कितना होगा, 12 13 14 15, तो राइट साइड से 15 रहेगा, फॉर्मूला लगा दो, 15 प्लस 10 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 24, टोटल जो है इस रो में कितने बच्चे रहेंगे, फिर 24 बच्चे यहाँ पे रहने वाले हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इफ द 25th ऑफ द अगस्त, 25 अगस्त की अगर बात करी गई है, 25 अगस्त और क्या है, थर्सडे है, द नंबर ऑफ मंडेज इन द मंथ, अब आपको ये बताना है कि इस मंथ में कितने मंडे हैं। अगर मंडे की मैं बात करता हूं तो पहले ये चेक कर लो मंडे कब आएगा, थर्सडे 26 27 28 29 30 और 31, 31 का होता है ना पहले महीना, ये जान लिया। थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे, मतलब पहला कब रहा होगा 29 को, तो 29 से वापस चले जाइए, 29 से 7 वापस जाएंगे तो कितना आएगा 22, 22 को भी क्या आया होगा मंडे, अब 22 से और पीछे जाइए 15, 15 को भी क्या होगा मंडे, अब 15 से और 7 पीछे जाइए 8 को क्या आया होगा मंडे, ठीक है, और अब पहली को मंडे आया होगा, तो आपके पास कितने मंडे होंगे, 1 2 3 4 5। अब एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कैसे,
देखो एक को अगर मंडे था तो एक में 7 ऐड कर दे 8, 8 में 7 ऐड करके 15, 15 प्लस 7 22, 22 7 29, तो बिल्कुल सही है आपका। तो आपके पास 1 2 3 मंडे है, 3 4 और ये 5, टोटल 5 मंडे थे आपके पास, तो सी ऑप्शन इसका आंसर बन गया। ठीक है, होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट के क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उसने क्या बोला है, ए ट्रेन इज 216 मीटर लॉन्ग एंड इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 19 सेकेंड्स with the speed of 21 meter per second. If some 21 meter long boxes are added in the train and it crosses platform completely, then it takes 26 seconds. देखो, जब पहले टाइम लगा था तो उसको 19 सेकंड लगा था और अब टाइम कितना लगा है, 26 सेकंड लगा है। ठीक है, टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म विद द सेम स्पीड हाउ मेनी बॉक्सेस वर एडेड इन द ट्रेन। अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो इसका आंसर आपको साथ के साथ मिल चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। कैसे, देखो, वही ट्रेन है, वही प्लेटफॉर्म है, वही ट्रेन है, वही प्लेटफॉर्म है। पहले 19 मिनट 19 सेकंड लगे, अब 26 सेकंड लगे, मतलब 7 सेकंड का डिफरेंस आया। और उसकी स्पीड क्या थी, 21 मीटर पर सेकंड, और उसमें 21 मीटर के ही उसमें बॉक्सेस जोड़े हैं। तो 7 सेकंड कब बढ़ेंगे, जब उसमें 21 मीटर के 7 सेकंड 7 बॉक्सेस होंगे, तो एक बॉक्स को क्रॉस करने में उसको 1 सेकंड लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करने की जरूरत थी। ठीक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को पहले आप प्लेटफॉर्म की लेंथ कैलकुलेट करते हो, फिर उसमें 21 के हिसाब से इंटू एक्स करके ऐड करते हो, तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनता है आपका फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। कि ए और बी दो लोग हैं, अगर बी की इन्वेस्टमेंट 1 है तो ए की इन्वेस्टमेंट क्या है, 2। अनदर पर्सन सी ज्वाइन देम आफ्टर 4 मंथ्स, फिर सी ने भी ज्वाइन किया उनको आफ्टर 4 मंथ्स। एट द एंड of a year, the profit share of A and C is equal. Then find the profit share of B is what percent of the C। देखो, अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसने हम कहते हैं y रुपए लगाए होंगे 8 महीने के लिए, और इनका पैसा लगा था पूरे पूरे 12 महीने के लिए। इनका पैसा पूरे पूरे 12 महीने के लिए लगा था। उसके बाद उसने क्वेश्चन में एक चीज हमें बोली थी, और वो क्या बोली थी कि ये जो 2x इंटू 12 है, इसका जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, y इंटू 8 के इक्वल है। देखो 12 गुना तो 24, 8 इस 24 को 3 पे काटेगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3x आ गई। अगर मैं यहां y की वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये 3x इंटू 8 मतलब 24x बन रहा है। कितना बन रहा है, 24x बन रहा है। और b का कितना था, 12x था। तो 12x 24x का कितना है, 50% है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रवि इज नाउ 4 years ओल्डर देन ईमा एंड हाफ ऑफ द अमाउंट ओल्डर देन इशू। रवि है, ठीक है, ईमा है, और इशू की बात की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ईमा की एज x है तो रवि की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोला, हाफ ऑफ दैट अमाउंट, मतलब 4 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, इफ इन 2 years रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ईमा, देन इन 2 years व्हाट शुड बी रवि एज मल्टीप्लाइड बाय इशूज एज। तो वो इशू की एज से कितना मल्टीप्लाई होगा। अगर हम आफ्टर 2 years की बात करें तो रवि की एज आफ्टर 2 year कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी। और इसकी बात करते हैं तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और इसकी बात करते हैं तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद उसने क्या बोला था कि जो रवि की एज है, ठीक है, वो कितना है, रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इमा। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका x प्लस 6 है वो ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहां से आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर दोनों की, अगर हम रवि की एज कैलकुलेट करते हैं, रवि की कितनी आ जाएगी, 4 प्लस 2 6, और इशू की कितनी आ जाएगी हमारी, 2 प्लस 2 4।
ठीक है। देन इन 2 ईयर्स, तो दो उसके बाद +2 इसमें कर दो, +2 इसमें कर दो, 8 और गुना 6 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 48 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये। उसके बाद बढ़ते आगे, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 8400 आफ्टर 3 इयर्स, के 3 साल में 8400 रुपए एंड 12,000 आफ्टर 6 ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। भैया सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो मतलब 3 साल का डिफरेंस था, तो 3 साल में कितने रुपए मिले थे उसको, 12,000 में से अगर मैं 8400 रुपए माइनस कर दूं, मतलब मुझे जो इंटरेस्ट मिला वो 3600 रुपए का इंटरेस्ट मिला था। ठीक है, तो 3 साल में 3600 रुपए, तो 1 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला था, 1200 रुपए का। ठीक है, तो मेरा सबसे पहले तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 8400 माइनस 3600। ठीक है, माइनस 3600 करूंगा तो प्रिंसिपल कितना था, 4800 रुपए। मुझे 1 साल में 1200 रुपए का इंटरेस्ट मिला 4800 रुपए के ऊपर 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सर्टेन प्रोडक्ट सी इज मेड ऑफ 2 इंग्रेडिएंट्स ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन 2:5 के 2:5 के रेशियो में उसने दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं। द प्राइस ऑफ ए इज थ्राइस दैट ऑफ बी, और जो ए का प्राइस है वो थ्राइस है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ए और बी के प्राइस की बात करें, अगर बी का प्राइस x है तो ए का प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये किस रेशियो में लिए हैं, ए और बी उसने 2 और 3 के रेशियो में, तो 2 इंटू 3x प्लस x इंटू 5। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कितना बनेगा, ये 3x इंटू 2 प्लस x इंटू 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, टोटल सॉरी डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, 5 + 2 7 है ना, 5 + 2 7, डिवाइड बाय 7। ठीक है, और ये प्राइस किसके इक्वल आ रहा है, 5.20 के इक्वल आ रहा है। मैं इधर लिख देता हूं कि ये किसके इक्वल है, 5.20 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 5.20 के इक्वल है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 गुना 5 35, और 35 और 7 गुना 2 14, 1.40, 35 और 1 36.40, किसके बराबर हो गया, इधर से 3 दूनी 6 और 5 11x। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3640/11। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे कटेगा नहीं, मतलब कुछ ना कहीं, एक सेकंड, इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस। अच्छा, लेबर चार्जेस भी है ना, 80 पैसा। ठीक है, लेबर चार्जेस भी हैं, तो इसमें से 80 पैसा माइनस भी करना पड़ेगा अपने को, तो ये इक्वल हो जाएगा 5.20 माइनस 80 पैसा। देखो, अगर ये माइनस करोगे तो ये 4 रुपए 40 पैसे आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 रुपए 40 पैसे आ जाएगा, 4 रुपए 40 पैसे, 4 रुपए। एक सेकेंड, 4 रुपए 40 पैसे, ये वाला रफ करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौक 28, 28 बन जाएगा, और फिर इसको 28 करेंगे, 7 चौक 28, 2 रुपए 80 पैसे, तो ये बनता है आपका 30 रुपए 80 पैसे, और इधर से 11x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 रुपए 80 पैसे डिवाइड बाई 11। अब डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग पे डिवाइड करेगा, 11 दूनी 22, 11 और 88, 2.80 आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करें, इन ए लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन हिस्ट्री, 50% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इंग्लिश, 40% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन जर्मन, द रिमेनिंग 4200 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। सिंपल क्या करो, टोटल नंबर ऑफ बुक्स को x ले लो। ठीक है, 30% हिस्ट्री की है, उनको हटा दो, कितनी बची, 70%। 50% रिमेनिंग किसकी, इंग्लिश की है, फिर और इंग्लिश की निकाल देंगे तो बची कितनी, 50%। 40% ऑफ द रिमेनिंग, फिर उन 40% को निकाल दो, बचा कितना, 60%, और वो किसके इक्वल है आपका, 4200 के इक्वल है। वो किसके इक्वल है आपका, 4200 के इक्वल है। सॉल्व करें, 0 से 0 गया। ठीक है, इस 0 से 0 गया, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 42, 700 पे गया,
35 इसको 20 पे डिवाइड करेगा, तो 20 इंटू 1000 करेंगे तो 2000 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देयर आर 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers. The smallest even number is 9 more than largest odd number, कि जो smallest even number है largest odd number से क्या है 9 बड़ा है। देखो अगर मैं कहूं कि पहले तो 3 consecutive odd numbers ले लो, अगर सेंटर का नंबर x लेते हो तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, और उससे पहले वाला नंबर क्या रहेगा x माइनस 2 रहेगा। ठीक है, x माइनस 2 रहेगा। ऐसे ही 3 consecutive even नंबर मान लेते हैं। ठीक है, यही बोला है ना उसने, ऐसे ही 3 consecutive even नंबर मान लो y की टर्म में। तो उसने सबसे पहले ये बोला देयर आर 3 consecutive odd and 3 consecutive even numbers. The smallest even number क्या है आपका y minus 2 है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है आपका y minus 2 is 9 more than the largest odd number, is 9 more than the largest odd number, और largest odd number क्या होगा आपका x plus 2 है। लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या है आपका x प्लस 2 है। अब देखो बड़ा कौन था, बड़ा आप उसने बोला ना स्मॉलेस्ट इवन नंबर, मतलब ये नंबर बड़ा है। अगर आप चाहते हो कि दोनों बैलेंस हो जाए तो 9 को इधर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं कि y माइनस एक्स, 9 2 11 और माइनस का 2 मिलाकर हो गया 13, तो y माइनस एक्स किसके बराबर हो गया 13 के बराबर हो गया। ठीक है, y माइनस एक्स किसके बराबर हो गया 13 के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला था, इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 गिवन ऑड नंबर्स इज 507 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 गिवन इवन नंबर्स। अब वो क्या कह रहा है, जो एवरेज है, इफ द स्क्वायर ऑफ, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल 3 गिवन ऑड नंबर्स। ठीक है, जो ऑड नंबर्स है उनका एवरेज, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो सेंटर का नंबर होता है वही एवरेज होता है, मतलब ऑड नंबर्स का एवरेज x है और इवन नंबर्स का एवरेज क्या है y है। इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 गिवन ऑड नंबर इज 507 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 गिवन इवन नंबर्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। मतलब बात तो x और y के ऊपर ही चल रही है। तो अब उसने क्या बोला है आपको यहां से कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 507 दे रखा है, a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, y प्लस एक्स, y माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया 507 के इक्वल आ गया आपका, किसके इक्वल आ गया 507। y माइनस एक्स की वैल्यू 13 है, तो यहां से y प्लस एक्स रखो 13, तो ये 507 डिवाइड बाय 13 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 13 तो 39, कितना बचेगा 11, और फिर 9 पे काटेगा। तो यहां से आपके पास y माइनस एक्स आपका 13 आ गया और y प्लस एक्स आपका 39 आ गया। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूं तो 2y किसके इक्वल है 9 3 12, 3 4 4, ये 52 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 26 आ गई। अगर y की वैल्यू 26 है तो दैट मींस x की वैल्यू 13 है। x की वैल्यू क्या है 13, उसने पूछा था स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो 13 माइनस 2 11 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से क्लियर हो जाती है तो A train moves with a speed of 30 km per hour for 12 minutes for next 8 minutes at a speed of 45 km per hour. Find the average speed. एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी? एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आपको पता है स्पीड इनटू टाइम। तो भैया 30 किलोमीटर की स्पीड से 12 मिनट डिवाइड बाय 60 करो, इसको आवर्स में चेंज करो, प्लस फिर 45 इंटू 8 बाय 60, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, 12 बाय 60 प्लस 8 बाय 60। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आपका आंसर बनेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 पे और ये इसको आ गया 6 पे आ गया, 15 से 3, 15 से 4 और 4 से इसको काटा 2 पे आ गया, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, टोटल डिस्टेंस तो कितना आ गया 12 आ गया आपका। एलसीएम लो 60, 12 और 8 20, 20 बटा 60 मतलब 1/3, 1/3, और ये 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 गुना 3 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
36 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। A container contains 40 liter of milk. From this container 4 liter of milk was taken out and replaced by water. 4 लीटर निकाला जाता है। देखो अगर 4 लीटर 40 में से निकाला गया तो मतलब 1/10 निकाला गया भैया। कितना निकाला गया? 1/10। अगर 1/10 निकाला है तो रिमेनिंग कितना है? 9/10 है। तो 40 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, जितनी बार ऑपरेशन किया वही अप्लाई कर दो। 0 से 0 कैंसिल, 9 का क्यूब क्या होता है? 729 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 700 को 4 से गुना करोगे 2800 होगा। ठीक है, और फिर 29 को 4 से गुना कर लो। ठीक है, टोटल कितना बनता है आपका? 2800 प्लस 116, 2916, और उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो 29.16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन यहां से आपको अपनी फास्ट रखनी है। ठीक है, इन ए लाइब्रेरी 60% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ बुक्स आर मलयालम। If there are 4800 books in English, then find the number of books in Malayalam. देखो टोटल जितनी भी बुक्स हैं वो अपने आप में 100% है। तो सबसे पहले वो क्या कहता है? 60% तो हिंदी की, बची कितनी? 40। 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन, इसका 60%, 6 चौक 24, 24 बुक्स किसकी हैं? इंग्लिश की हैं। अगर 24 बुक्स इंग्लिश की हैं तो बची कितनी आपके पास? 16 बुक्स बची जो किसकी है? मलयालम की है। ठीक है, देखो मतलब इंग्लिश और जो मलयालम की बुक्स हैं उनका रेशियो कितना है आपका? 3:2 है। और 3 की कीमत कितनी दी गई है? 4800 दी गई है। 1600, एक की कीमत 1600, तो दो की कीमत कितनी? 3200। तो 3200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन को जितना इजी बनाओगे अपने लिए उतना इजी होगा। रेशियो को जहां यूज कर सकते हो, जिस चीज को जहां यूज कर सकते हो, जितना आज तक सीखा है वो सब कुछ लगा दिया करो। A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. A और फिर क्या कह रहा है भैया? B और C जितना टाइम लेते हैं बराबर बराबर टाइम लेते हैं दोनों बराबर, मतलब एक और एक का रेशियो होगा। अगर रेशियो 1 टाइम का रेशियो अगर 1:1 बताया गया है तो मेरे भैया एफिशिएंसी का रेशियो भी 1:1 होगा। उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में तो कह रहा है कि भैया A प्लस बी 10 दिन में करते हैं, C भैया 50 दिन में करता है। एलसीएम ले लो 50, A प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और भैया C की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 होगी। C की एफिशिएंसी क्या होगी? 1 होगी। अगर भैया मैं इधर से A प्लस बी प्लस C की एफिशिएंसी निकालता हूं मेरे भाई, तो A प्लस बी प्लस C की एफिशिएंसी क्या होगी? 6 होगी। और इधर से A प्लस बी प्लस C की एफिशिएंसी क्या होगी? 2। एफिशिएंसी का खेल अलग अलग नहीं हो सकता। यहां 6 है तो मेरे भाई यहां भी 6 होगी। 3 से मल्टीप्लाई करो, लो जी, A की एफिशिएंसी आ गई 3 आपकी। अगर A की एफिशिएंसी 3 है तो B की एफिशिएंसी क्या आ गई? 2, और C की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1 आ गई। उसने पूछा था कि B अकेला कितने दिन में करेगा, तो 50 डिवाइड बाय 2 25 डेज में करेगा। 25 डेज में। चलो क्या कह रहा है? फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, 15% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 10% ऑफ द बैलेंस ही स्पेंड्स ऑन क्लोथ। आफ्टर दिस एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विद 1377 रुपीज इन सैलरी। सॉरी, अगर कहें उसकी सैलरी एक्स है, 10% हाउस रेंट में गया, बचा कितना? 90 बच गया। 15% चिल्ड्रंस एजुकेशन पे गया, बचा कितना? 85। फिर 10% गया, बचा कितना? 90। और ये किसके इक्वल आ गया? 1377 के इक्वल आ गया। ठीक है, चलो अब जो काटापीटी होती है यहां से कर दो। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं ये 17 पे काटता है, 5 से डिवाइड करता हूं ये इसको 20 पे काटता है। अगर मैं इसको 17 से काटूं, पहले 8 पे काट रहा है और फिर 1 पे काट रहा है, फिर 9 इंटू 9 81, ये पूरा इसको काट रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा कितना? 2000। बस हो गया आंसर, ऑप्शन ए 20 इंटू 100, 2000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन द सेम सम फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 25% पर एनम इज 1500 रुपीज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 2 साल का, ठीक है, 1500 रुपए आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल? देखो अगर 2 साल का डिफरेंस है ना, वो क्या होता है आपका? आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 होता है। कितना होता है? आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100। मतलब ये डिफरेंस कितना है? ये 6.25 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6.25 का डिफरेंस आ रहा है। तो बस कर दो सोल्व। 1500
डिवाइड बाय 6.25 इंटू 100, और मैं इस 0.25 को हटा देता हूं, ऊपर 100 कर देता हूं, ठीक है। 25 से काटोगे इसको 25 पे, ये इसको 4 पे काटेगा, ये भी इसको 4 पे काटेगा, ठीक है। 1500 गुना 16, ठीक है। 16 गुना 15 करो 240 होता है, पीछे 2 जीरो और लगा दो, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमेश एंड रामू एंट्री इनटू ए पार्टनरशिप विद देयर इनिशियल सम ऑफ 36 एंड 48,000। रमेश बाबू हैं, रामू जी है उसके साथ, रमेश ने लगाए हैं 36,000 रुपए और रामू ने लगाए हैं आपके 48,000 रुपए, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ ए थर्ड पर्सन केशव, और 6 महीने के बाद केशव ने भी ज्वाइन किया, और केशव भाई साहब ने कितना पैसा लगाया, 24,000 रुपए। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, इसका पैसा 12 महीने के लिए, इसका पैसा 12 महीने के लिए, इसका पैसा लगा 6 महीने के लिए। आफ्टर ए ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट इज दिस, फाइंड द शेयर ऑफ रामू। देखो सबसे पहले तो मैं 12 से काटता हूं इसको, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 तीन 36, ठीक है। उसके बाद 6 दूनी 12, 12 से 12 गया, तो रेशो कितना आ गया, 3, 4 और 1, मतलब टोटल 8, और 8 6400 के बराबर है, 1 800 के बराबर। रामू का पूछा था, तो 8 गुना 4 3200। चलिए क्या कह रहा है, ए ट्रेडमैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 15 आर्टिकल्स, स्टिल गेन्स 30, द मार्क प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। भैया कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का चक्कर है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका, 100 माइनस डिस्काउंट होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है आपका, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो 100 माइनस 496 और 100 प्लस 35 135। अब 15 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री भी दे रहा है। भैया हम तो पैसा देंगे 15 के हिसाब से, दुकानदार अपना प्रॉफिट कितने के हिसाब से लेगा, 16 के हिसाब से, ठीक है। डिवाइड करो 16 से 96, 15 निमा 135, तो मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग इसका मार्केट प्राइस का रेशियो 2:3 है। 2 से 3 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 2 के ऊपर 50% ज्यादा है। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए 41st जो आपका मॉक टेस्ट से हुआ है उसको देखेंगे, उसके क्या क्वेश्चंस रहे हैं, एंड में टोटल करेंगे कि कितने मार्क्स रहे हमारे सबके, ठीक है। चलिए वी विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन आज का पहला। द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, वो कहता है कि जो आपके पास सीरियल्स हैं उसकी पहली कल्टीवेशन आपके पास कौन से समय के अंदर हुई है, तो इट हैपेंड इन द न्यूलिथिक एजेस, ठीक है। क्लास देखो 3 वर्ड है, पैलियो, मीसो और नियो। तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। मीसो का मतलब होता है ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है, मिडल वाला। न्यूलिथिक एजेस है जो न्यू स्टोन एज आपके पास आपको लास्ट में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आज से तकरीबन अगर मैं पीछे चला जाता हूं तो 12-13 हजार साल पहले की बात कर रहा है। द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर, स्टैग इन्फ्लेशन एक शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो इसका पूछा आपको ये सिचुएशन कौन सी आपके पास, ठीक है। तो परसिस्टेंट हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेंट ग्रोथ, जब आपकी इकोनॉमी में सिचुएशन क्या हो कि इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई हो जाए, साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आपका बहुत है, जैसे पाकिस्तान में फिलहाल ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, और ग्रोथ आपकी स्टैग्नेंट हो जाए, यानी कि बहुत माइन्यूट लेवल पर आपकी ग्रोथ, जैसे मैं कहूं 1 साल के बाद तरक्की 0.01% हुई है, तो स्टैग्नेंट ग्रोथ है ऐसी ग्रोथ को, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप स्टैग इन्फ्लेशन बोलते हो। विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व अ कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो केसरी वाज द न्यूज़पेपर, ठीक है। महारता भी इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो युगांतर के साथ ये एसोसिएटेड नहीं थे। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन इन्होंने स्टार्ट किए थे। इंडियन ओपिनियन इन्होंने साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, तो इट वाज इंडियन ओपिनियन। चलिए, whenever the RBI does some open market operation transaction, actually it wishes to regulate which of the following। कहता है जब भी आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है तो उस समय उसका मोटिव क्या होता है, मोटिव के फॉर्म में क्वेश्चन है, लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब लिक्विडिटी बढ़ानी है घटानी है उसके ऊपर डिपेंड है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपने किया है, आपने सिक्योरिटीज को सेल किया है या परचेज किया। अगर सेल कर दिया आपने तो आपने मार्केट में लिक्विडिटी कम कर दी, अगर परचेज कर ली तो आपने लिक्विडिटी बढ़ा दी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज सनराइजिंग इंडस्ट्री, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप सनराइजिंग इंडस्ट्री बोलते हो। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट 1976 द प्रियम्बल रिजॉल्व इंडिया टू बी, कहता है अगर 1976 से पहले देखें तो आपका जो प्रियम्बल है वो किस बारे में जस्टिफिकेशन दे रहा है, तो सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सोशलिस्ट सेकुलर इसके बाद आए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज सोट टू बी सिक्योर्ड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल, वो कहता है कि आपको इनमें से कौन सी लिबर्टी दी गई। अब प्रियम्बल पढ़ा होगा तो बेटे आराम से पता लग सकता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आपको इसकी लिबर्टी दी गई है। Who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रसाद किया था, ठीक है। By which amendment the Constitution words socialist and secular were added to the preamble? तो 42nd amendment है। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 2A was introduced in the Constitution to inclusion of which of the following territories? तो सिक्किम को 2A आर्टिकल से ऐड किया गया था। The total number of ministers including Prime Minister and the Council of Ministry cannot exceed 15% of the total member of House of People, यानी लोकसभा की 15% से ज्यादा मेंबर्स आपके इसमें ऐड नहीं हो सकते। Being a non-member, who among the following can participate in the proceeding of either House of the Parliament without having right to vote? इनमें से कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता लेकिन उसके पास किसी भी तरीके की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जाने का हक है और वो वहां पे वोट नहीं करेगा? तो आंसर कौन है? अटॉर्नी जनरल। हु प्रिसाइडेड ओवर द लोकसभा व्हेन बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर एब्सेंट, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट होते हैं तो लोकसभा के अंदर कौन आपके पास इसको लीड करेगा? एनी पैनल मेंबर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, तो किसी को भी स्पीकर नॉमिनेट कर सकता है। व्हाट इज द क्वारम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? वो तो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन जिसके साथ आप कोई सदन में काम शुरू कर सकते हो, तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। जैसे लोकसभा में 55 है, राज्यसभा में ये नंबर 25 है क्वारम का। What would happen if a person gets elected both as a member of parliament and a member of legislative assembly of a state but does not resign from either of the state with prescribed period? वो कहता है कि अगर कोई बंदा MP भी बन जाता है और MLA भी बन जाता है लेकिन कहीं से रिजाइन नहीं करता, तो सिचुएशन क्या होगी आपके पास? The person seat in the parliament becomes vacant, तो MP की जो सीट आपकी खाली कर दी जाएगी, आपको एज अ MLA ही अपॉइंट किया जाएगा, या तो आप सीट छोड़ दो या आपको निकाला जाएगा। Consider the following statement: tax policy of the government directly affects level of saving and investment in the economy, attractiveness of the foreign investment. तो आंसर ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी आपकी टैक्स पॉलिसी चेंज होती है तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में फर्क पड़ता है, और अगर टैक्स पॉलिसीज कम हो जाती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मोपला रिबिलियन ये कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड था? केरला के साथ एसोसिएटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो इट वाज स्वदेशी मूवमेंट जो 1906 में आपके पास होता है। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो 1919 में पास हुआ था, सिडनी रॉलेट के नाम से था ये। अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 ऑफ द जल शक्ति मिनिस्ट्री विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन विद 13,960 ODF यानी ओपन डिफेक्शन प्लस विलेजेस? तो आंसर क्या है? तेलंगाना ने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया। When is the International Custom Day 2023 observed? तो जनवरी 26 को कस्टम डे बनाया जाता है, इंटरनेशनल कस्टम डे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट इन विच स्टेट? तो ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। Which country has handed over the chairmanship of Wassenaar Agreement to India in 2023? तो ये आपको किसने दिया है? USA ने दिया है। December 1 is observed as एड्स डे, ये इसमें एस क्या डोनेट करता है? तो इट्स डोनेट सिंड्रोम, तो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 10% ऑफ EWS कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ADB approved 125 million loan to approve water supply and sanitation service in which city of उत्तराखंड? तो ये आपके पास देहरादून के अंदर ये अप्रूव किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। मिस मैगडेलेना एंडरसन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नॉर्डिक कंट्री? तो ये स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपके पास कौन से स्टेट में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज? तो WHO इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द 41st मॉक टेस्ट। एक बार अपने स्कोर टैली कीजिए, देखिए कितना इंप्रूवमेंट आपके पिछले सारे टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग हुआ है।
सो दैट आपको आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड पता लग सके। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। Hello everybody, welcome to the English section by Gyanam. I am Piyush Sardana, your Bud English language teacher. Let us see what we have in store over here. बड़ा easy sentence improvement आया था। Each of our students, each से start हुआ है, singular होगा तो pays आ जाएगा, तो pays his fees हो जाएगा because each से start हुआ है, singular है। Next, it is essential to thoroughly clean, clean होना चाहिए, thorough नहीं आएगा तो clean thoroughly makes the right answer. I told him clearly that he, अभी मॉडल आ जाएगा, ought to मॉडल है, बाद में नहीं आएगा, he ought not to have done, बिल्कुल सही, और कहीं to था ही नहीं। Followed by, when a man has to give evidence, he must have a clean abreast of whole matter. He has to speak openly, something that is there to speak openly. Followed by, he is a plain, simple and sincere man. He will always call a spade a spade. प्लेन टर्म्स में बात करने को बोला जाता है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इक्के को हुक्म के इक्का को हुक्म कहना है ना, बोलते हैं ना, इडियम है, तो इसका मतलब होगा वो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से पीछे रहता है, डिजिस्ट रखता है। शी इज अ कट अबव टीचर्स इन द स्कूल। कट अबव का मतलब होता है ये कुछ हद तक उनसे ऊपर है बाकी टीचर्स से, दैट कम्स आउट टू बी सुपीरियर। क्लोजेस्ट टू द ऑपोजिट ऑफ द मीनिंग, यहां पे आपको बताना है कि ये चीज आपकी एंटोनिम है या सिनोनिम है। एंटोनिम का मतलब हो जाएगा वो चीज ऑपोजिट है और सिनोनिम का मतलब हो जाएगा सेम है। तो यहां पर है ऑपोजिट। द यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाज वेरी परस्पिकेशियस, आंसर आ जाएगा अनरिलायबल, मतलब वो रिलायबल है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनरिलायबल। अब है ये भी ऑपोजिट है, द स्पीकर मेड सम वेरी कोगेंट, मतलब कन्विंसिंग रिमार्क्स को बोला जाता है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनकन्विंसिंग। फॉलोड बाय ही फेल्ट सिक या सिकली, सिक हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है ना फेल्ट की बात हो रही है, पर ना, वो सिक लग रहा था उसको तो वो घर रहा था। नेक्स्ट, डॉक्टर सेड द वुंड लुक्ड वेरी बैड, बहुत बैड लग रहा था वुंड। यहां पर क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। शी डैश हर डॉटर्स टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क, कहता बिफोर शी गोज टू वर्क, वर्क पे जाने से पहले अपनी डॉटर को वो छोड़ देती है, तो टेक्स हो जाएगा। फॉलोड बाय सिनोनिम्स बताना है। वर्ड इज एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है जो कभी नहीं जाएगा, यानी वो हमेशा रहेगा, फॉर एवर। जैसे आज शिवरात्रि है ना, कहते हैं ना महादेव इज एटर्नल, इज एवर लास्टिंग, तो ये चीज हो जाएगी एवर लास्टिंग। फॉलोड बाय करेक्ट सेंटेंस, शी रिफ्यूज टू लेट ईदर ऑफ अस गो होम, हाँ हम में से किसी को भी नहीं जाने दिया। एक कार के बाद सो आई आस्क्ड द ड्राइवर टू लेट मी डाउन, नो टू ड्रॉप मी बेसिकली। हाजी इस्लाम विल बी रिटर्निंग फ्रॉम लीव्स बाय द एंड ऑफ अगस्त, विल रिटर्न हो जाएगा। इन इंग्लैंड आई लर्नड अ ग्रेट डील ऑफ हाउ अदर पीपल्स, नहीं ऑफ कोर्स नॉट, तो आंसर क्या आ जाएगा वो। एनीवन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हिम इज एनेबर्ड, एनेबर्ड के साथ नॉर्मली ऑफ लगता है, पर आप यहां देखकर हैरान हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन में ऑफ है, दोनों में ऑफ नहीं आएगा, एक ऑप्शन में ऑफ है। एक्चुअली में यहां पर जो अपने पास विद वाला ऑप्शन है ना, वो हटा रखा है, आंसर यहां ऑफ आएगा। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म, देखो विल वर है ना पास्ट, तो यहां पर भी पास्ट आ जाएगा, फिल्म बिगैन। ओह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड, टेक केयर, एंजॉय।